Good afternoon, everyone. My name is Nitika Bansal, working as an assistant professor in Chandigarh Polytechnic College. Today, we will discuss the topic microcomputer and microprocessor. So let us start. First of all, here are the table of contents that we are going to discuss in this video. First, microcomputer, block diagram of microcomputer, microprocessor and its evolution, functions of microprocessor, features of microprocessor, and there will be some basic terms that are used in microprocessor. All right. First of all, let us start with microcomputer. What is microcomputer? As its name says, microcomputer, that means it is a small computer which is relatively very inexpensive. It consists of a microprocessor which works in the same way our CPU works, that is our central processing unit works. All right, it includes what? Microprocessor, memory and input output devices. तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है? ये एक स्मॉल इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर है. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि माइक्रो कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू की जगह एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है. ठीक है, और यू कैन से कि सीपीयू जो है लार्ज डेटा पे एक साथ प्रोसेसिंग कर सकता है, लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं वो आपके एक टाइम पे कुछ अमाउंट ऑफ डेटा पे ही काम कर सकते हैं. लाइक हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स अवेलेबल होते हैं 4 बिट के, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, इस तरह से. ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स जो आपके पॉपुलर हुए हैं वो हुए 1970 से लेके 1980 तक. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक माइक्रो कंप्यूटर है इंटेल का, दैट इज 8051, which is a single board computer, and there are many other computers available like IBM PC, Apple Macintosh computers. But now in today's generation microcomputers उतने यूज नहीं हो रहे हैं जितने अब आपके कंप्यूटर सिस्टम्स आ गए हैं विद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि माइक्रो कंप्यूटर्स आर योर कंप्यूटर्स कंसिस्टिंग ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर इंस्टेड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नेक्स्ट इज योर ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर. Microcomputer consists of three main units, just like your computer system consists of. It is input devices, output devices, memory and your microprocessor. जब आप कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम करते हो उसमें माइक्रो प्रोसेसर की जगह पे आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगी होती है. राइट, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस सिर्फ है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जगह पे आपका होगा माइक्रो प्रोसेसर. ऑल अदर यूनिट्स आर सेम एंड दे विल वर्क इन द सेम मैनर. Here is the brief or block diagram of microcomputer, where you have microprocessor. It has three different parts like ALU, registers and control unit. Then your input output devices and your memory. All these devices are connected using a system bus. That was just a preview of microcomputer block diagram. और ये आपका माइक्रो कंप्यूटर का असली ब्लॉक डायग्राम है जिसमें हमने हर एक पार्ट को उसके फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करके शो किया हुआ है. माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी में रैम रोम है, देन योर सिस्टम बस. ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस ऑल दीज पार्ट्स इन डिफरेंट स्लाइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर माइक्रो प्रोसेसर. Microprocessor, as I already told you, it is your central processing unit. बिल्कुल central processing unit की तरह काम करता है. डिफरेंस क्या है कि इसका साइज एक तो छोटा होता है और ये कम डेटा पे एक टाइम पे प्रोसेसिंग कर सकता है. ठीक है जी. माइक्रो प्रोसेसर को आप लोग माइक्रो आपका एक सिंबल होता है, माइक्रो पी करके भी लिख सकते हो. ठीक है, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज. उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर में काफी सारे छोटे छोटे आपके सेमीकंडक्टर आईसीज लगी होती है. ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर serves as a central processing unit in a computer system or in any handheld device. Microprocessor is your central processing unit. It works in the same way your central processing unit works. The difference here is in their size or in the data they can process at a time. Correct? Now, डायग्राम में आपने देखा था कि माइक्रोप्रोसेसर के तीन पार्ट्स हैं. Those are ALU, registers and control unit. What is ALU? ALU is your arithmetic and logical unit which is used to perform all the arithmetic and logical operations. जितने भी आपके arithmetic और logical operations होंगे, like arithmetic operations
addition, subtraction, multiplication, division. And logical operations are like and, or, XOR, NOT, all these things. All these operations are performed using arithmetic and logical unit. Correct. Second is your registers. There are number of registers in any microprocessor or in any central processing unit, और most of them वो सारे जो हैं मतलब ज्यादातर टेम्परेरी ही होते हैं. रजिस्टर्स जो हैं वो आपके डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए यूज होते हैं. और कोई भी आप माइक्रो प्रोसेसर ले लो, उसमें काफी सारे रजिस्टर्स होते हैं. जैसे कि हमने ब्लॉक डायग्राम 8085 का पढ़ा हुआ है, उसमें हम लोगों ने 8085 के काफी रजिस्टर्स डिस्कस किए थे. All of them store the information in temporary manner, and that information can be your data or it can be your address. Correct. Next is your CU. CU means control unit. कंट्रोल यूनिट का बेसिक काम क्या है, जब भी आपके जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं आपके ALU में, कुछ भी डेटा स्टोर हो रहा है रजिस्टर्स में, तो ये सारे काम का कंट्रोल करना किस यूनिट का काम होता है? कंट्रोल यूनिट का. कि जो भी टास्क वगैरह परफॉर्म हो रहा है वो करेक्टली परफॉर्म हो रहा है या नहीं, टाइमली परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, ये सब कौन चेक करती है? आपकी कंट्रोल यूनिट. सो दीज आर 3 पार्ट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर: अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर एरे एंड योर कंट्रोल यूनिट. अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आपके ऑपरेशंस परफॉर्म कराएगी, जो भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे. रजिस्टर एरे में आपके आएंगे रजिस्टर्स जो आपके डेटा को स्टोर करते हैं फॉर टेम्परेरी पर्पस. CU है आपकी कंट्रोल यूनिट, जो सारे टास्क वगैरह को, सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है. राइट. जो आपका सेकंड पार्ट है वो है आपका मेमोरी. मेमोरी सबको पता है, इट इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, और ये परमानेंट डेटा को स्टोर करती है. मतलब अगर हम मेन मेमोरी की बात करते हैं तो उसके बाद कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो आपका माइक्रो प्रोसेसर डेटा कहाँ से रीड करता है? इट रीड द डेटा और द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी. किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की बात कर लो तो उसमें आपके पास 2 मेन मेमोरीज होती हैं, रैम एंड रोम. रैम इज योर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम इज योर रीड ओनली मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी वो होती है जिसमें आप रीडिंग और राइटिंग दोनों कर सकते हो. जो भी करंटली आपकी एग्जीक्यूशन चल रही होती है वो सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? आपका रैम में. और रोम होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी, जो इनबिल्ट होती है, जिसमें डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड होता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग. जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो सारी रोम में स्टोर्ड होती है. उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते. करेक्ट. दिस इज योर मेमोरी पोर्शन. मेमोरी इज यूज्ड फॉर व्हाट? इट इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन. जो भी आपके फाइनल रिजल्ट्स वगैरह होते हैं, परमानेंटली डाटा स्टोर करना होता है, वो हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? आपकी मेमोरी में. और माइक्रो प्रोसेसर को कुछ भी डेटा चाहिए, कोई भी इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो उसको कहाँ से रीड करता है? मेमोरी से. ठीक है. नेक्स्ट आती है आपकी सिस्टम बस. सिस्टम बस बेसिकली क्या है? ये एक कम्युनिकेशन पाथ है बिटवीन योर माइक्रो प्रोसेसर एंड योर पेरिफेरल डिवाइसेस. पेरिफेरल डिवाइसेस मींस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी. जो भी डेटा रीड करना है या राइट करना है, कुछ भी एड्रेस चाहिए, कोई भी कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सब किसके थ्रू पास होती है? सिस्टम बस के थ्रू. सिस्टम बस आपके माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और आपकी मेमोरी को आपस में कनेक्ट करती है. ठीक है. दे कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर यूजिंग द सिस्टम बस. सिस्टम बस आपके पास 3 टाइप की होती है: डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस. नाम से ही पता चल रहा है, डेटा बस के थ्रू आपका डेटा पास होगा, एड्रेस बस के थ्रू आपका एड्रेस पास होगा, और कंट्रोल बस के थ्रू आपके कंट्रोल सिग्नल्स पास होंगे बिटवीन microprocessor and peripheral devices. Peripheral devices are your input output devices and memory. Okay. Next are is your input output units. Input unit का क्या काम होता है? कुछ भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस है उसको इनपुट कराना टू माइक्रोप्रोसेसर. मतलब जो भी आप डेटा एंटर करोगे माइक्रोप्रोसेसर में, वो किसके थ्रू करते हैं? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू. और जो भी रिजल्ट्स वगैरह आपके आते हैं वो आपके पास डिस्प्ले होते हैं किसके थ्रू? एक आउटपुट डिवाइस के थ्रू. फॉर एग्जांपल योर स्क्रीन. ठीक है. इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर द डेटा एंड आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन टू द यूजर. So these were the main parts of microcomputer. What were those? Microprocessor, input output unit, memory and system bus. Okay. And microcomputer and its block diagram is a very important topic. So इसको carefully कर लेना ये. ठीक है.
नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स इवोल्यूशन। माइक्रो प्रोसेसर हम सबको पता चल गया है क्या है, इट इज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन उससे साइज में ये छोटी होती है, एक सिंगल इंटीग्रेटेड चिप पे बनी होती है और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा पे एक टाइम पे काम कर सकती है। ठीक है जी। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स इवोल्यूशन। सो देयर आर नंबर ऑफ जनरेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, लाइक जो आपकी फर्स्ट जनरेशन आई थी माइक्रो प्रोसेसर की, उसमें आपके जो माइक्रो प्रोसेसर आए थे वो 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर थे। मतलब कि वो एक टाइम पे 4 बिट के डेटा पे ही काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा पे नहीं। और ये वाली जो जनरेशन इंट्रोड्यूस हुई है किस ईयर में हुई है, वो था आपका 1971 टू 1972। और सबसे पहला जो आपका 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर आया है दैट इज योर इंटेल 4004। ठीक है, अब इसके नाम में ही है 444। ठीक है ना, तो मतलब क्या है कि ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है विच कैन प्रोसेस अ डेटा ऑफ 4 बिट्स एट अ सिंगल टाइम। ठीक, इसमें आप लोग अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन सारे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और सारी तरह की कंट्रोल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, मेमोरी है, इंस्ट्रक्शंस को आप डिकोड कर सकते हो, ऑपरेशन सारे सब में परफॉर्म हो जाता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि एक टाइम पे बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करता है एंड दैट इज योर 4 बिट। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में आपके जो माइक्रो प्रोसेसर आए वो थे आपके 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर। जैसे कि हमने 8085 बड़ी डीपली पढ़ा है, उसका ब्लॉक डायग्राम, पिन डायग्राम, उसकी बसेस। तो आपका 8085 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब वो 8 बिट के डेटा को ही एक टाइम पे प्रोसेस कर सकता है। तो 8085 इज योर सेकेंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, जो कि इंट्रोड्यूस हुई है 1973 में। अगेन इसमें भी हम सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, सारे कंट्रोल सिग्नल्स आप लोग जनरेट कर सकते हो। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का एक और यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है 8008। जैसे कि 4 बिट का था 4004 इंट्रोड्यूस किया था इंटेल ने, ऐसे ही 8 बिट का इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया था 8008। उसके बाद आया 8085, फिर आया 8088। ये सब एक दूसरे की इम्प्रूवमेंट्स हैं किसी ना किसी वे में, लेकिन काम ये 8 बिट के डाटा पे ही करते हैं एक टाइम पे। ठीक है, तीसरी आपकी, ऑब्वियसली तीसरी तो थर्ड जनरेशन में आपके जो माइक्रो प्रोसेसर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं वो है आपके 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर, जो कि आपके एक टाइम पे 16 बिट के डेटा पे काम कर सकते हैं। इस जनरेशन का जो ईयर है दैट इज योर 1978, और इसका जो एग्जांपल रहेगा वो रहेगा इंटेल 8086। 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो आपका वो थर्ड जनरेशन का 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। क्लियर? नेक्स्ट इज योर फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में जो माइक्रो प्रोसेसर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं वो हैं आपके 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स। इसका एग्जांपल है इंटेल 80386। लास्ट इज योर फिफ्थ जनरेशन विच इज योर 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ऑब्वियसली जो अब आपकी करंट जनरेशन चल रही है उसमें जितने भी आपके प्रोसेसर्स हैं मोस्टली सब 64 बिट के हैं। आपका डुअल कोर हो गया, क्वाड कोर हो गया, पेंटियम वगैरह के हो गए, ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स हो गए, ये सब आपके 64 बिट प्रोसेसर्स हैं। ठीक है, और ये जनरेशन आपकी स्टार्ट हुई है 1995 और अभी तक आई गेस 64 बिट प्रोसेसर्स ही चल रहे हैं। करेक्ट, तो दिस इज अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन एंड फ्रॉम 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर टू 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। यू कैन सी कि माइक्रो प्रोसेसर्स में कितनी जल्दी जल्दी इंप्रूवमेंट आया, 4 बिट, फिर 8 बिट, फिर 16 बिट, 32 बिट, एंड नाउ we have the processors of 64 bits. Correct. Next is your microprocessor के functions कि microprocessor आपका काम कैसे करता है, how it functions. सबसे पहले तो microprocessor करता क्या है, जो भी instructions को perform करनी है वो उसको main memory से fetch करता है। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप में हम लोग उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं। डिकोड करना मीन्स ये फाइंड आउट करना कि उस इंस्ट्रक्शन में आपको करना क्या है और उसके लिए आपको डेटा क्या क्या चाहिए। ठीक, फिर इंस्ट्रक्शन के बेस पे हम सारे डेटा को मेन मेमोरी से फेच करते हैं। ऑप कोड्स क्या हैं, ऑपरेंड्स क्या हैं, हर एक चीज के डिफरेंट डिफरेंट कोड्स होते हैं किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में, तो वो सारे कोड्स को हम लोग मेन मेमोरी से फेच करते हैं। उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन को करते हैं एग्जीक्यूट, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अर्थमेटिक है या लॉजिकल है, व्हाटएवर इट इज। ठीक है जी, उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट आता है एग्जीक्यूशन का उसको हम मेमोरी में कहीं ना कहीं पे ऑब्वियसली स्टोर तो करेंगे ही ना, तो उसके लिए हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं इन मेमोरी।
बट इन बिटवीन दीज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन आपके प्रोसेसर में क्या चीज हो सकती है, इंटरप्ट आ सकते हैं। हमने इंटरप्ट ऑलरेडी पढ़े हुए हैं 8085 में। अगर कुछ भी इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आती है इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो आप सबको पता है कि सीपीयू यानी कि प्रोसेसर आपकी एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करके पहले इंटरप्ट को हैंडल करता है, उसके बाद अपनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। माइक्रो प्रोसेसर कैसे फंक्शन करता है, पहले तो इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से फेच करते हैं, उसके बाद हम लोग इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं। डिकोड करने से आपको पता चलता है कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के बाद नाउ यू नो कि आपको क्या क्या ऑपकोड्स चाहिए, क्या क्या ऑपरेंड्स चाहिए, तो हम उसको मेन मेमोरी से फेच करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं वो परफॉर्म कराते हैं। एग्जीक्यूट कराना मतलब जिसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शन को। एग्जीक्यूशन के बाद जो भी आपका रिजल्ट आता है उसको हम मेन मेमोरी में स्टोर करते हैं। ठीक है। बट एग्जीक्यूशन से पहले क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन। इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन कुछ भी इंटरप्ट आ सकती है कि कोई और डिवाइस आपकी बसेस का कंट्रोल चाह रहा है, तो आपका प्रोसेसर क्या करता है, अपने काम को पॉज करके पहले इंटरप्ट्स को हैंडल करता है, उसके बाद अपनी एग्जीक्यूशन रिज्यूम करता है। क्लियर है? This is how your microprocessor functions. मतलब you can say this is the working of a microprocessor step by step. This is the flow chart of functioning of microprocessor. सेम चीज है जो हमने अभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ी है, उसको हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए वेट करते हैं। अगर कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में है ऑब्वियसली, तब हम उस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच करेंगे, फिर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराएंगे। उसके बाद ये चेक करता है आपका प्रोसेसर की कोई बीच में इंटरप्ट वगैरह तो नहीं आया। अगर कोई इंटरप्ट आया है तो वो इंटरप्ट को हैंडल करता है, अगर नहीं आया तो रिजल्ट को हम लोग मेमोरी में स्टोर करते हैं और कंट्रोल आपका स्टार्टिंग में चला जाता है। क्लियर? उसके बाद here are some features of microprocessors. फर्स्ट वन इज यू कैन से लो कॉस्ट। ऑब्वियसली माइक्रोप्रोसेसर साइज में भी छोटे होते हैं, कम डेटा पे काम करते हैं, तो उनकी कॉस्ट कम होती है। दे आर ऑफ हाई स्पीड, दे आर ऑफ स्मॉल साइज, दे कंज्यूम वेरी लेस पावर, लेस हीट जनरेशन, बहुत ही कम हीट जनरेट होती है आपके माइक्रोप्रोसेसर्स में। दे आर वेरी रिलायबल, ठीक है, एंड वेरी पोर्टेबल। ऑब्वियसली साइज कम है तो पोर्टेबल तो होंगे ही होंगे, यू कैन इजिली कैरी देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। करेक्ट। उसके बाद देर आर सम बेसिक टर्म्स जो सारे माइक्रोप्रोसेसर्स में यूज होती है। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन सेट। हर एक माइक्रोप्रोसेसर्स में अपने इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप होता है, कमांड्स का एक ग्रुप होता है कि जैसे कि आपको अगर एडिशन करनी है तो उसके लिए आपके पास ऐड होगा, सब्ट्रैक्शन करनी है तो उसके लिए कोड सब होगा। इस तरह से काफी सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी भी माइक्रोप्रोसेसर में, तो उन इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज योर बस। बस इज अ सेट ऑफ कंडक्टिंग वायर्स जो कि आपके डेटा को कैरी करने के लिए यूज होती है बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर एंड योर पेरिफेरल डिवाइसेस। अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था सिस्टम बस। अगर खाली बस आ रहा है तो वो भी सिस्टम बस है, सिस्टम बस है तो वो बस है। समझ रहे हो ना? बस इज योर सिस्टम बस। कहीं पे भी अगर आप बस की बात कर रहे हो माइक्रोप्रोसेसर में, मतलब हम लोग सिस्टम बस की बात कर रहे हैं, जो कि आपकी तीन टाइप्स की होती है, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। ठीक। नेक्स्ट इज योर आईपीसी। आईपीसी क्या है आपकी? आईपीसी इज योर इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। ये क्या होती है कि आप लोग एक साइकिल में कितनी इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करा सकते हो। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस a CPU or a microprocessor is capable of executing in a single clock cycle. एक सिंगल क्लॉक साइकिल में आप कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करा सकते हो, उसको हम आईपीसी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड इज व्हाट? इट इज द नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड द प्रोसेसर कैन परफॉर्म। कि एक सेकंड में आपका प्रोसेसर कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकता है, उसको हम उसकी क्लॉक स्पीड बोलते हैं। और इसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज, इस तरह से। एंड क्लॉक स्पीड इज आल्सो नोन एज योर क्लॉक रेट। ओके। नेक्स्ट इज योर बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन में कितनी बिट्स आपकी प्रोसेस होंगी, उसको हम उस इंस्ट्रक्शन की बैंडविड्थ बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ क्या है? इट इज द नंबर ऑफ बिट्स द प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट अ टाइम। वर्ड लेंथ
वर्ड की कितनी लेंथ को आपका प्रोसेसर एक टाइम पे प्रोसेस करा रहा है, उसको हम उसकी वर्ड लेंथ बोलते हैं। जैसे कि आपका 8085 है, वो कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, 8 बिट का, तो उसकी वर्ड लेंथ क्या हुई, 8 बिट ऑब्वियसली। ठीक है ना। नेक्स्ट इज योर डेटा टाइप्स। हर एक माइक्रो प्रोसेसर के अपने कुछ डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि आप लोग लैंग्वेजेस में पढ़ते हो, वहां पे आपके पास इंटीजर के लिए इंट होता है, फ्लोट के लिए फ्लोट होता है। ऐसे ही माइक्रो प्रोसेसर में भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि बाइनरी हो गए, हेक्साडेसिमल हो गए, एस्काई कोड्स हो गए, साइंड अनसाइंड नंबर्स हो गए, इस तरह से। तो दीज आर द बेसिक टर्म्स जो हर एक माइक्रो प्रोसेसर में यूज होती है, एंड दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एज वेल। क्लियर है? थैंक यू।